کہ جس دن سے میرا رضا بریلی کی دھرتی پہ پیدا ہوا، جب تک رہا جس دن سے میرا رضا بریلی کی دھرتی پہ پیدا ہوا، اس دن سے جب تک رہا ہر سانس سے میرے رضا کی مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو آتی رہی۔ بولے سبحان اللہ۔ ہر سانس سے مصطفیٰ کی میرے رضا کی سانس سے خوشبو آتی رہی، جس نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں قربان کر دیا۔ وہ رضا جو چلتا ہے تو نبی کی محبت میں، بیٹھتا ہے تو نبی کی محبت میں، سوتا ہے تو نبی کی محبت میں، بولتا ہے تو نبی کی محبت میں، کھا رہا ہے تو نبی کی محبت میں، پی رہا ہے تو نبی کی محبت میں۔ آج کل نبی کی بدماش کو یاد کرتی ہے کہ کون آنا حضرت، تم تو میرے رضا کی بات کرتے ہو، میں تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تو احمد رضا کی بات کرتے ہو، قیامت آ جائے گی مگر میرے تعلق شریعہ کو نہیں سمجھ پاؤ۔ کون آنا حضرت ہے جس نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ نے گزار دی ہو، قلم اٹھا نبی کی محبت میں، زبان کھلی نبی کی محبت میں، ساتیں لکھی نبی کی محبت میں، نعتیں لکھی نبی کی محبت میں، تو کہتے ہو یار میرے رضا کی سانس اٹھائی ہو تب بھی نبی کی محبت سے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کون اعلیٰ حضرت، تم نے ابھی جانا نہیں، تم نے ابھی پہچانا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کسی باپ کے بیٹے کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت کسی کے بیٹے کے باپ کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت کسی کے دادا کے پوتے کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت کسی کے پوتے کے دادا کا نام نہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ خانہ بھی ہمارا نام احمد رضا ہے، غوث اعظم کے موت نہیں ڈالا احمد رضا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی نام کا نام احمد رضا ہے۔ سنیت کی سب سے بڑی طاقت کا نام اعلیٰ حضرت ہے، تو دیوانوں کو بھی اعلیٰ حضرت کا دامن مت چھوڑو، اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کے رہنا۔ اور یار اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دنیا کو سلامت رکھے، تمہاری زندگی کو سلامت رکھے، تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، تمہارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے، تو یاد رکھنا میرے رضا کی چوکھٹ پکڑے رہنا، رضا کے دامن کو مت چھوڑنا۔ اس لیے میرے رضا کا دامن وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور یاد رکھنا میرے رضا کی محبت میں ڈالے بخشوں کے دل بھی کام۔ اعلیٰ حضرت سنیت کی سب سے بڑی طاقت کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے دل و دماغ کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ہماری زندگی کے ہر ایک ایک لمحے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کی بستی سے 6 بچے الحمدللہ جن کے سروں پر علم کی دستار سجائی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا ہے، یہ مدینے والے کا کرم ہے، مدینے والے کا کرم۔ ارے بولے یار مدینے والے کا کرم ہے۔ آج جسے دیکھو تو آج دنیا بھی تعلیم میں پڑا ہے، جسے دیکھو ہم تو یہ کہتے ہیں جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے، مصیبت کسی کے سامنے آتی ہے، تو پھر حافظ قرآن کو تلاش کیا جاتا ہے۔ کاش اگر تو نے بھی اپنے شہزادوں کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، قاری قرآن بنایا ہوتا، عالم دین بنایا ہوتا، تو آج تجھے کسی کی چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ آج تیرا بیٹا ہی گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا، وہ قرآن پڑھتا، اللہ تیرے گھر میں برکتیں عطا فرماتا۔
तुमने अपने शहजादों को दुनियावी तालीम सिखाई, किसी ने हाथ पकड़ के किसी से पूछा बता दे कि अल्लाह ने तुझे बेटे दिए हैं तो अपने बेटे को कौन सी तालीम सिखाएगा? तो बाप बड़े फख्र के साथ सीने पे हाथ मार के कहता है कि रब ने मुझे 3 बेटे अता फरमाए हैं, मैं अपने बेटे को दुनियावी तालीम सिखाऊंगा। मैंने कहा कौन सी तालीम सिखाएगा? तो बाप ने कहा था एक बेटे को मैं बैंक का मैनेजर बनाऊंगा, एक बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, एक बेटे को वकील बनाऊंगा। मगर आओ उलमा ने कलाई को पकड़ के कहा था तूने अपने शहजादों को दुनियावी तालीम सिखाने के लिए तो तूने ख्वाब देख लिए हैं, मगर इतना बता दे जब तू बिस्तरे मर्ज़ पे पड़ा होगा, आखिरी सांसें चल रही होगी, उस वक्त ना तेरा डॉक्टर काम आएगा, न वकील काम आएगा, न बैंक का मैनेजर काम आएगा, फिर बता तो कुरान से काम आएगा, फिर कौन से हाथ में कुरान को तलाश करेगा? सारे बात इतना तो बता दो। और यार तुमने तो ये समझ लिया है हमें हाफिज़ कुरान की जरूरत नहीं है, तालिब कुरान की जरूरत नहीं है, आलिम दीन की जरूरत नहीं है। तुमने हाफिज़ कुरान को क्या समझ रखा है? आज तुम तो ये कहते हो अगर कोई हाफिज़ गुजर के जाता है तो तुम कहते हो ये ज़कात खाने वाला जा रहा है, ये फितरा खाने वाला जा रहा है। तुम्हें क्या मालूम है ये मदरसे का तालिब इल्म है जो दुनिया की ज़कात खाता होगा, मगर याद रखना ये उस मदरसे में इल्म की हासिल कर रहेगा जिस मदरसे के अंदर तुमने तो ये जाना है कि ये हाफिज़ कुरान जुड़ा रहा है, ये ज़कात खाने वाला है, और यहाँ ये ज़कात खाने वाला नहीं बल्कि मदरसे में इल्म की हासिल करने वाला, ये कोई ज़कात खाने वाला नहीं, ये बल्कि मुस्तफा का सदका खा करके कुरान को सीने में बचाने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत, हज़रत उलमा अहले सुन्नत। तुमने क्या समझ लिया है? तुमने क्या जाना है इन्हें कि हाफिज़ कुरान का मर्तबा कितना बड़ा मर्तबा है? वो यारो याद रखना जब किसी का शहजादा जब घर से बाहर कदम निकालता है ना, बाहर कदम निकालता है, माँ की आंख में आंसू होते हैं, बहन की आंख में आंसू होते हैं, बाप की आंख में आंसू होते हैं, मसर पे हाथ रखे कहती है शहजादे ए बेटे आज तू मदरसे की तरफ जा रहा है तो शहजादे एक बात याद रखना, मदरसे से वास्ता तब होना कि जब तेरे सीने में पूरा मुक़द्दस कलाम बस जाए। सुभान अल्लाह। बहन कहती है भाई जब तू हाफिज बन के आएगा तो तुझे तेरी बहन सीने से लगाएगी। बाप अलग दुआएं देता है, माँ अलग दुआएं दे रही है, मगर बेटा जब मदरसे की तरफ जाता है बहन की आंख में आंसू होते हैं, माँ की आंख में आंसू होते हैं, बाप की आंख में आंसू होते हैं। और यार तुमने चाहा क्या है? मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, बहन अपने भाई से कितना प्यार करती है, माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है। और यार ये तो वो शहजादा जा रहा है जब ये घर के अंदर था, अगर बिस्तर पर लेट जाता और इसके ऊपर से अगर चादर हट जाती तो माँ आकर के बेटे के ऊपर चादर झुका करती है। और यार यहाँ तक कि अगर सर की तरफ से चादर उठ जाए तो माँ आकर के टेक करके अपने शहजादे के सर को ढक दिया करती है। कदमों से चादर हट जाए तो माँ कदमों की तरफ चादर डाल रही है। और यार ये तो उस मदरसे में जा रहे हैं जहाँ पर न माँ का चेहरा है, न बहन का चेहरा है, न भाई का चेहरा है, न भाई का चेहरा है, न बाप का चेहरा है। उस मदरसे के लिए जा रहा है। तुमने तालिबे इल्म को समझा क्या है? तुमने तालिबे इल्म को जाना क्या है? यार अपने उस मदरसे के लिए जा रहा है। जब तक ये घर के अंदर रहा इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसे खाना मिलता रहा। इसने कहा अम्मा मुझे खाने में ये खाना चाहिए, माँ ने ला करके खाना बना करके खिलाया। इसने अगर कहा है और माँ खाने में नमक तेज हो गया है तो उसे माँ ने खाने को दूसरा बना कर तैयार किया है। और यहाँ के आप उधर मदरसे जा रहा है जहाँ पर अगर खाना अगर तेज अगर मिर्चे वाला हो तो ये बच्चा ये नहीं कहता तो इसके अंदर तेज मिर्चे है। अगर नमक ज्यादा हो जाए तो कोई कम करने वाला ही मिलता। मैं तो तुम्हें बताना चाहता हूँ अगर इसकी तबीयत किसी खाने को नहीं करती है तो कह नहीं सकता, मगर जब तक कर रहा है माँ से कहता रहा माँ मुझे ये खाना पसंद नहीं है, ये पीना पसंद नहीं है। माँ कहती रही बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक माँ बना के खिलाती रही है। और ये उस मदरसे गया है जिस मदरसे के अंदर न माँ है, न बहन है, न भाई है, न बाप है। मगर याद रखना ये बच्चा घर पे सो रहा है, अगर जमीन पे सो जाए तो तबीयत खराब हो जाती है, मगर मदरसे जा रहा है फर्श पे सो रहा है। और याद रखना अगर ये फर्श पे सो रहा है तो अब इसकी तबीयत खराब हो रही है, न बीमारी बन रही है, न इसकी तबीयत
किसी चीज को कर रही है, वो जान देना चाहे जब तक ये कर रहा उसकी तबीयत जिसको करती रही, बात होती रही। अब मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, अगर ये चाहता कर रहा है हमारी बहन देते रहे हैं, और ये तारी जिस दिन से मदद से गया है काम रखा है, अभी इबादत करने वाला कोई और नहीं है बल्कि आमना का नाम कर रहा है। कुरान बना लो और ये कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो कि अगर तेरा बेटा और ये कुरान बन जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा तो याद रखना कि दुनिया में भी काम आएगा। और एक बात बताओ, जब तक तू जिंदा रहेगा घर के अंदर कुरान की तिलावत करेगा, दुनिया से अगर चले जाओगे तो बेटा कब्र पे बैठ के कुरान की तिलावत करेगा, इधर कुरान की तिलावत करेगा, उधर तेरी कब्र में अगर अंधेरा होगा ना अंधेरा, ये कुरान की तिलावत करेगा कि कभी हमको रहीम कहकर के पुकारेगा, कभी करीम कहकर के पुकारेगा, तेरे कब्र में नूर पैदा हो जाएगा। अब ये फरिश्तों से कहेगा, वो फरिश्तों से इतना तो बता दो, अभी कब्र के अंदर अंधेरा था उजाला कैसे हो गया? तो फरिश्ते कहेंगे जिस बेटे को तुमने कुरान बनाया है, आपने कुरान बनाया है, तेरे उसी बेटे ने तेरी कब्र पर बैठ करके रब को करीम और रहीम कहकर के पुकारा है, अल्लाह ने उसी की बरकत से तेरी कब्र के अंदर नूर अता फरमा दिया। जिंदाबाद, नूर अता फरमा दिया। जब अपने बेटे को हाफिज बनाओगे इंशाअल्लाह, कैसे मुसलमान हो कि खाली खाना खाने के मुसलमान हो, रोटियां और अभी तो क्या मुसलमान बन गए? पहले अपने दिलों को मदीना बनाओ, दिलों को साफ करो, तो हाथ उठा के आज ये वादा कर लो, अल्लाह एक बेटा देगा तब भी हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह दो बेटे देगा तब भी हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। जब अगर तीन बेटे देगा तब भी हम उसको कारी कुरान बनाएंगे, कारी कुरान बनाएंगे। एक फिर नेताजी, अल्लाह ने तीन बेटे अता फरमाए, बात सुनते चले, कितने? आवाज आनी चाहिए, कितने? अगर यार मेरी आवाज बैठी है तो कम से कम आपको निकाल के बोल दो, अल्लाह सबको सलामत रखे। कितने? तीन बेटे थे, तीन बेटे। अब पकड़ के करना ही पूछा था तो अपने शहजादों को क्या बनाएगा? तो बाप ने कहा था एक बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, एक बेटे को वकील बनाऊंगा, एक बेटे को बैंक मैनेजर बनाऊंगा। या दुनिया का अमीर होता है तो बेटे को दुनियावी तालीम सिखाता है, पैसा पास में होता है वो दौलत लगा करके बेटे को अमीर बना लेता है, बेटे को वकील बना लेता है। मगर गरीब के पास दौलत नहीं होती, मगर गरीब के पास में इतना पैसा नहीं होता कि जो अपने बेटे का दाखिला यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर करा सके। या गरीब तो इतना करता है अपने शहजादे की उंगली पकड़ करके और मां के करीब पहुंचाता है और जाकर के कहता है मौलाना मेरे बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सिखाओ, मेरे बेटे को कुरान का कारी बना दो, मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दो। बेटे को गरीब बनाता है हाफिज कुरान, अमीर के होते हैं बड़े बड़े बाप। और यार हमने तो यहाँ तक के देखा है जब गरीब के बच्चे मदरसे की तरफ जाते हैं तो इनके बदन पे फटा लिबास होता है, पैरों में टूटे हुए जूतियां होती है और यहाँ फटा हुआ बस्ता लेकर के अगर चाहता है तो गरीब का बच्चा मदरसे की तरफ जाता है, इनमें दीन हासिल करने जाता है। और अमीर के शहजादे जब घर से कदम निकालते हैं बेहतरीन गाड़ी हुआ करती है, बेहतरीन बस्ता होता है, बेहतरीन लिबास होता है, शानदार तरीके से जाते हैं तो लोग उनके करीब होती है। अमीर के बच्चे बड़ी शान के साथ जाया करते हैं, मगर गरीब का बच्चा है आंख में आंसू होते हैं और कोई पूछने वाला पूछता है और क्या तेरी आंख में आंसू कैसे है? तो गरीब का बच्चा यही कहता है मेरा बाप गरीब है, इतनी दौलत नहीं है मेरे बाप पर जो मैं भी अपने बाप की तारीफ से जा सकूं, आंख में आंसू कैसे है? मेरे बाप को गरीब बनाया है, मगर जो भी अमीर के बच्चे मेरे सामने से जाते हुए निकल के इनके पकड़ पे बेहतरीन लिबास होता है, बेहतरीन बस्ता होता है, बेहतरीन जूते होते हैं, आंख में आंसू इसलिए मेरे आते हैं। काश अपने बाप को अमीर बनाया होता तो मैं भी गाड़ी के गाड़ी से जाया करता,